Hello friends, I am Shantanu, your coach, and now we are going to start capital market instrument, and here first we are going to discuss the shares. Share has been defined under section 284, that is section 2 subsection 84. ये आपको एग्जाम में कोड भी करना है. As per this section, share means a share in the share capital of a company and it includes a stock. ये definition as it is आपको एग्जाम में लिखनी है. Apart from this, आप थोड़ा additional points भी लिख सकते हैं. Share means not a sum of money, but it is a bundle of rights and liabilities. ये जितनी भी बातें हैं ये कोर्ट ने इन्हें डिस्क्राइब किया है while deciding a case. So share is not just a sum of money, but it is a bundle of rights and liability. Again, you can write that there are two main rights available to shares: right to participate in the profit and right to participate in the assets. It has a right to participate in the profit while company is a going concern and declares the dividend. जब sound position में company declare कर रही है dividend, तो share has a right to participate in the profit in the form of dividend, and it is also have a right to participate in the asset of the company when it is being wound up. तो जब उसका end होता है company का, then such share provide you a right to participate in the asset. Again, you have to write there are two types of share. One is preference shares and second is equity shares. अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की. प्रेफरेंस नाम से ही क्लियर है कि इट हैज गॉट अ प्रेफरेंशियल राइट. सो शेयर विच कैरीज अ प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, that share will be treated as preference shares. Now there are variety of preference shares. We will see all these kinds of preference shares one by one. Now first let's see the redeemable and irredeemable preference shares. Redeemable preference shares are those preference shares where company redeem those shares after a certain time period. For example, अगर कंपनी ने आज इशू किए हैं redeemable preference shares for 5 years, 5 साल की टर्म है, तो 5 साल के बाद ये कंपनी इनको रिडीम कर लेगी. कंपनी रिडीम कर लेगी का मतलब है ये कंपनी वापस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा दे देगी और उसको कैंसिल कर देगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को. नाउ सेक्शन 55 टॉक्स अबाउट द कंडीशंस फॉर इशू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. कोई भी कंपनी अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहती है तो सबसे पहले तो आर्टिकल्स शुड ऑथराइज सच इशू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. Second condition, the company should pass a special resolution for that in the general meeting. And third, there should be no subsisting default in redemption of preference shares or payment of dividend of preference shares. तो कहने का मतलब है कि अगर कंपनी न्यू इशू लाना चाहती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का, तो उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो पहले के प्रेफरेंस शेयर्स हैं वहां पे किसी भी तरह का डिफॉल्ट नहीं है, रिडिम्पशन का डिफॉल्ट नहीं है और पेमेंट ऑफ डिविडेंड का डिफॉल्ट नहीं है. देन ओनली कंपनी कैन इशू न्यू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. Another important point you have to remember that company cannot issue a redeemable preference share which is redeemable after 20 years. तो मैक्सिमम जो पीरियड हो सकता है रिडिम्पशन का वो 20 इयर्स हो सकता है. 20 इयर्स से ज्यादा पीरियड के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नॉर्मली कंपनी इशू नहीं कर सकती. However, there is one exception, so let's see that exception. इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है. However, a company which is engaged in infrastructural project, अगर ऐसी कोई कंपनी है जो infrastructural projects में involved है, which are defined under Schedule 6 of this Companies Act, then such company can issue the preference share, that is redeemable preference share, which are redeemable after 20 years but not exceeding 30 years. यानी मैक्सिमम जो रिडीम्पशन पीरियड है ये कंपनीज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो इशू करेगी उनका मैक्सिमम रिडीमेबल पीरियड हो सकता है 30 इयर्स. इससे बाद के रिडीम्पशन वाले प्रेफरेंस शेयर्स ये कंपनी भी इशू नहीं कर सकती. लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है कि कंपनी इस तरह के इशू कर सकती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, बट there is a condition that redemption of minimum 10% of such preference shares per annum from 21st year onwards. For example, एक कंपनी ने
जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है उसने एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं एक तरह के, एंड जिसका वैलिडिटी पीरियड है 30 इयर्स का, यानी 30 इयर्स बाद ये रिडीम होंगे। नाउ द कंडीशन इज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डील कर रही है तो इस तरह का इशू कर सकती है, बट आफ्टर 20 ईयर, जब 20 ईयर हो जाएंगे इशू के बाद, देन 21st ईयर से कंपनी विल हैव टू रिडीम मिनिमम 10% ऑफ दीज प्रेफरेंस शेयर पर एनम। हर साल एटलीस्ट 10% ऑफ दीज प्रेफरेंस शेयर शुड बी redeemed by the company on a proportionate basis and at the option of preference shareholders। तो ये ऑप्शन दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कि क्या आप रिडीम करना चाहते हैं। इफ दे से यस, तो कंपनी विल हैव टू रिडीम 10% पर एनम के हिसाब से फ्रॉम द 21st ईयर अप टू द 30 ईयर। Now again you have to remember the most important point that a company means any company, no company can issue irredeemable preference share। irredeemable preference share आज की डेट में कोई भी कंपनी इशू नहीं कर सकती। तो मैक्सिमम जो वैलिडिटी पीरियड होगा, रिडीम्शन पीरियड होगा, वो मैक्सिमम 30 इयर्स हो सकता है अगर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में है, और अगर नॉर्मल कंपनी है तो मैक्सिमम रिडीमेबल पीरियड हो सकता है उसका 20 इयर्स। अब हम देखेंगे पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। सो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं विच गिव्स देम राइट टू पार्टिसिपेट फर्दर in the profits of the company after a payment of certain rate of dividend to equity shares। दूसरा, in the surplus at the time of winding up of the company। On the other hand, non participating preference shares वो होते हैं जिनको ये फर्दर पार्टिसिपेशन का राइट नहीं रहता। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक प्रेफरेंस शेयर्स है, केवल उसको लिखा है प्रेफरेंस शेयर, इट हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड कि ये पार्टिसिपेटिंग है कि नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो ऐसे में याद रखना है, व्हेन इट इज नॉट स्पेसिफाइड देन प्रेफरेंस शेयर विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो जब तक प्रेफरेंस शेयर्स के बाद उस ऐसा नहीं लिखा जाता कि इट इज अ पार्टिसिपेटिंग, उसको नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर ही माना जाएगा। अब बात करते हैं क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की। A cumulative preference share is a preference share that has a right to demand the unpaid dividend of any year during the subsequent year। तो मान लीजिए एक प्रेफरेंस शेयर से और इसको पिछले 3 साल का 3 इयर्स पे डिविडेंड नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि कंपनी को लॉस में थी, दैट इज व्हाई कंपनी कुडंट पे द डिविडेंड। नाउ इन केस ऑफ ए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, these preference share have right to demand the earlier dividend also। तो जो एरियर्स रहता है डिविडेंड का पिछले सालों का, वो भी आने वाले समय में इनको मिलता है इन केस ऑफ ए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में आप पुराने साल का डिविडेंड डिमांड नहीं कर सकते। तो अगर किसी साल में कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है बिकॉज ऑफ लॉसेस, तो वो उनका लॉस हो जाता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, वो आगे फ्यूचर में उसको डिमांड नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन है कि अगर केवल प्रेफरेंस शेयर लिखा है, ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये क्यूमुलेटिव है कि नॉन क्यूमुलेटिव, तो आपको याद रखना है प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स अनलेस एक्सप्रेसली स्टेटेड एज नॉन क्यूमुलेटिव। अब देखते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। सो प्रेफरेंस शेयर दैट कैरीज अ राइट फॉर कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विटी शेयर्स at the end of the specified period will be treated as convertible preference shares। अब बात करते हैं फुल्ली कन्वर्टिबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसको इक्विप्रेफ भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में ये डिवाइड रहता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो रहता है, इट इज कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी शेयर्स ऑटोमेटिकली एंड कंपल्सरीली ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट विदाउट एनी एप्लीकेशन फॉर बाय द अलॉटी। तो ऑटोमेटिकली एक पार्ट तो उसका इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, कंपल्सरीली होता है कन्वर्ट। एंड पार्ट बी इज रिडीम्ड एट पार or converted into equity after the lock-in period at the option of investor। तो पार्ट बी का जो पोर्शन रहता है,
इट विल बी रिडीम्ड एट पार, याद रखना है एट पार, और इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी आफ्टर अ लॉक इन पीरियड एट द ऑप्शन ऑफ द इन्वेस्टर। तो अगर ऑप्शन दिया है इन्वेस्टर को, यानी ऑप्शन है इन्वेस्टर के पास, वो अगर चाहता है तो वो इसको पार्ट बी को भी कन्वर्ट करा सकता है इक्विटी शेयर में आफ्टर अ लॉक इन पीरियड, यानी जो एक लिमिटेड पीरियड है उसके बाद, बट एट द प्राइस 30% लोअर देन द एवरेज मार्केट प्राइस। जो भी एवरेज मार्केट प्राइस होगी उससे 30% लेस वैल्यूएशन करके उसको कन्वर्ट किया जाएगा इक्विटी में, वो भी अगर इन्वेस्टर अगर ये चाहता है कन्वर्जन तो। अब बात करते हैं इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स मीन शेयर्स विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर्स। देयर आर टू काइंड्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। पहला है इक्विटी शेयर विथ इक्वल राइट्स एंड दूसरा इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट्स। Now let's see equity share with equal rights. Here all the shareholders have the same right in all respect. In all respect means with respect to dividend, voting or otherwise. अगर उनको same rights हैं तो इनको बोला जाता है equity share with equal rights. अब बात करते हैं इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट्स। अब डिफरेंशियल राइट्स किस तरह के हो सकते हैं पहले ये देख लीजिए। मान लीजिए देयर आर टू शेयर्स, शेयर ए एंड शेयर बी। अब यहां पर डिफरेंशियल राइट कैसे हो सकते हैं कि सपोज शेयर ए विल गेट अ डिविडेंड 100% डिविडेंड व्हाट एवर इज डिक्लेयर्ड ऑन द इक्विटी। जो बी क्लास का इक्विटी शेयर है इट विल गेट 50% ऑफ द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। तो ये हो गए आपके इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट्स विथ रेस्पेक्ट टू डिविडेंड। इसी तरह से वोटिंग राइट में भी आप चेंजेस ला सकते हैं। एक को 100% वोटिंग राइट रहेगा, दूसरे को थोड़ा कम वोटिंग राइट रहेगा। So let's see the equity share with differential right now. Any company limited by shares, तो limited by share होनी चाहिए तभी वो shares issue कर सकती है। Limited by share may issue equity share with differential right as to dividend, voting और otherwise। ये तीन keywords आपको एग्जाम में जरूर लिखना है। डिफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड, वोटिंग और अदरवाइज। अब अदरवाइज को कुछ डिफाइन नहीं किया इन्होंने। सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस, ये कंडीशंस के लिए आपको देखना पड़ेगा कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। तो देखते हैं कौन सी कंडीशंस है जिनको सेटिस्फाई करने के बाद कंपनी इशू कर सकती है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट। तो पहली कंडीशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ दैट कंपनी मस्ट ऑथोराइज सच इशू। दूसरा, प्रॉफिट रिकॉर्ड होना चाहिए कंपनी का। इट शुड हैव अ रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट फॉर एटलीस्ट लास्ट 3 ईयर। 3 साल से वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का रिकॉर्ड होना चाहिए कंपनी के पास। एंड थर्ड, द कंपनी हैज पास्ड एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन फॉर दिस पर्पस इन द जनरल मीटिंग। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, फोर्थ पॉइंट, द इक्विटी कैपिटल विथ डिफरेंशियल राइट, यानी आप जो नई तरह की इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हैं विद डिफरेंशियल राइट, शेल नॉट एक्सीड 26% ऑफ द टोटल पोस्ट इश्यू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आपके पास नॉर्मल इक्विटी शेयर है जिसका जो पेड अप कैपिटल अमाउंट है 74 लाख, ठीक है। अब आपको अगर इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इश्यू कर रहे हैं तो कर सकते हैं। कितना कर रहे हैं आप? लेट्स से 26 लाख। 26 लाख के आपने इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स या डिफरेंशियल राइट्स आपने इशू किए हैं। अब टोटल कितनी हो गई? 100 लाख। दिस इज द पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल। तो ये जो पोस्ट इश्यूज पेड अप कैपिटल 100 लाख है, इसमें 26% से ज्यादा का पोर्शन डिफरेंशियल राइट, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स का नहीं होना चाहिए। तो प्रेजेंट केस में 26 लाख तक है तो इट इज अलाउड। बट इस केस में अगर 74 लाख पेड अप कैपिटल है कंपनी की विथ नॉर्मल इक्विटी शेयर्स और कंपनी 27 लाख के इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू करना चाहती है तो नहीं कर सकती। रीजन कि पोस्ट इशू कैपिटल हो जाएगी आपकी 101 लाख और इसका जो 26% है उससे ज्यादा एक्सीड हो जाएगा प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा इसके लिए। इसके बाद दो और कंडीशन ये कहते हैं कि द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड, नो डिफॉल्ट की कंडीशन होनी चाहिए।
अब डिफॉल्ट किसमें, फाइलिंग ऑफ एनुअल अकाउंट एंड एनुअल रिटर्न फॉर लास्ट 3 इयर्स। तो पिछले 3 सालों में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए फॉर फाइलिंग ऑफ एनुअल अकाउंट एंड एनुअल रिटर्न। दूसरा, देयर शुड नॉट बी एनी डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट और रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर और रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड में भी कोई तरह का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। देन another condition is that the company has not been convicted during the last 3 years, यानी पिछले 3 सालों में कंपनी को कोई सजा या फाइन नहीं हुआ हो अंडर दीज एक्ट। उसके पहले हुआ था तो चलेगा। सो लास्ट 3 इयर्स में कोई कन्विक्शन नहीं होना चाहिए इन केसेस में। दीज आर द एक्ट्स अंडर विच देयर शुड नॉट बी एनी कन्विक्शन फॉर लास्ट 3 इयर्स। द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सेबी एक्ट एंड FEMA and RBI Act and any other special act under which such company is being regulated by sectoral regulator. For example, अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस एक्ट में भी उसका कोई कन्विक्शन नहीं होना चाहिए फॉर लास्ट 3 इयर्स। अब जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, इसके ऊपर एग्जाम में केस भी आ सकता है। पहला, a company cannot convert its equity share with equal rights into इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट। तो नॉर्मल इक्विटी जो शेयर्स हैं उसको वो कन्वर्ट नहीं कर सकती